پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیحا کے مبارک ترین نام میں جو راجاؤں کے راجا اور خداوندوں کے خداوند ہیں، آج شب آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں اور شکر گزار ہوں خداوند اپنے خدا کا، جن کے وسیلہ سے مجھے یہ انمول گھڑیاں ملی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر اس زندگی بخش اور انمول کلام کو سیکھنے والا ہوں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ خداوند آج اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی ڈھیروں برکت دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ آج کے دن یوحنا عارف کی معرفت لکھے گئے مسیح خداوند کے مکاشفہ سے متعلق اور ان باتوں سے متعلق جن کے وعدے مومنین کلیسا سے خداوند نے کیے ہیں، ان سے متعلق سیکھ رہے ہیں تاکہ ہمارے ایمان خداوند میں اور زیادہ مضبوط تر ہوتے چلے جائیں۔ مکاشفہ 21 باب اور اس کی 17 آیت تک ہم نے گزرے ہفتے غور کیا تھا۔ ان آیات میں مقدس یوحنا اس نئے شہر یروشلیم سے متعلق جو خداوند یسوع گئے ایڈوانس میں یوحنا 14 کے مطابق جس شہر کے تیار کرنے کے لیے اور ہمیں وہاں پر لے کر جانے کے لیے، اور اس شہر یروشلیم سے متعلق جو مومنین کے لیے ایک امید ہے کہ وہ وہاں پر ہوں گے۔ مومنین یعنی کلیسائی مومنین کی بات کر رہا ہوں، جن کے جامے مسیح خداوند کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں، ان کی بات کرتا ہوں۔ ان کے لیے یہ ایک ایسی جگہ اور ایک ایسا مقام ہے جہاں خداوند اپنے خدا اپنے لوگوں کے بیچ میں ہوں گے، اور خداوند کے لوگ خداوند کی حضوری میں چند گھنٹے اور چند مہینے نہیں بلکہ عبدالآباد خداوند کی حضوری میں ہوں گے۔ مقدس یوحنا اس شہر نئے یروشلیم سے متعلق اس کی خوبصورتی، اس کے جلال، اس کی رونق، اس کی تعمیر سے متعلق، اس کی دیواروں سے متعلق، اس کی بنیادوں سے متعلق، اس کے پھاٹکوں سے متعلق وہ ہمیں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ ان میں سے کئی باتوں پر ہم آلریڈی غور کر چکے ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے میں 18 اور 19 دو آیات رکھنا چاہوں گا تاکہ اس قلیل سے وقت میں ہم ان دو آیات پر غور و خوض کر سکیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشیب کی تھی، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشہ کی مانند ہو، اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشیب کی تھی،
दूसरी नीलम की, तीसरी शबे चिराग की, चौथी जमर्द की। और बाय द वे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 20 आयत है वो भी इसी से मुताल्लिक है, लेकिन इन डिटेल्स पर हम और बेहतर तरीका से बात कर पाएंगे जब खुदावन ने हमें नेक्स्ट वीक को फिर से मौका दिया तो हम इन तफासील को देखेंगे। लेकिन आज इन 2 आयाते मुबारका को बुनियाद बनाते हुए आपके साथ यह शेयर करना चाहता हूं कि यूहन्ना इस शहर की रौनक और इस शहर की खूबसूरती और उसके उस हुस्न को जो खुदावन अपने खुदा की हुजूरी के सबब से थी और है और होगी, उससे मुतालिक हमें बयान करते हैं। लेकिन याद रखिए, यूहन्ना रोया में जो कुछ अपनी इन महदूद सी आंखों से देख रहे थे, बशर थे ना, खुदा तो नहीं थे मेरी तरह और आपकी तरह, लेकिन खुदा ने अपने बंदे को रूहुल कुद्स से इस तौर पर मामूर किया कि वो पतमस के जजीरा में खुदावन की तरफ से इस तौर पर चुने गए कि इन मकाशफाती बातों को उनके जरिया से लिखवाकर आज मेरे और आपके हाथों तक पहुंचाई जाए। और मुकद्दस यूहन्ना रोया में इस महदूद निगाह से आप यूं कह सकते हैं कि बड़ी हल्की सी झलक उन्होंने इस शहरे मुकद्दस नए यरूशलेम की महसूस की है और उससे मुताल्लिक ये बात बयान करते हैं। जबकि मैं ये कहूंगा कि जब तक फिलहाल तो हमें ये एक झलक दिखाई गई है, लेकिन जब तक हम उस नए शहरे यरूशलेम में जा ना लें, उस वक्त तक उसका उस तौर पर अंदाजा नहीं होगा मेरा इन आयात के तलावत करने से। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब खुदावन अपने लोगों को यह मौका फराहम करेंगे कि हम खुदावन की हजूरी में इस नए शहरे यरूशलेम शहरे मुकद्दस में हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि बस जाते ही हम उस नए शहरे यरूशलेम से मुताल्लिक बहुत कुछ जान लेंगे। नो एंड नेवर। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि अभी तो आगाज होगा देखने का कि ये शहर मुकद्दस नया यरूशलेम कितना हसीन और कितना खूबसूरत है। बाज़ौक़ात जब मैं किसी नई जगह की बाबत, खुदा ने कई नए ममालिक, कई नई जगहों के लिए दरवाजे खोले, और फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं सोचता हूं कि मैं जाऊंगा, तो मैं अपने जहन में प्लान बनाता हूं कि इन मीटिंग्स के बाद, क्योंकि मेन फोकस मीटिंग्स पर है, जो एक का दिन बाकी बचेगा, उसमें मैं क्या करूंगा, किससे मिलूंगा और कहां जाऊंगा, और फिर कितना वक्त बाकी होगा और मैं किन किन जगहों पर जाऊंगा। मिसाल के तौर पर मैं सोचता था कि जब मैं वाशिंगटन जाऊंगा तो मैं एक ऐसी जगह पर जाऊं जिस जगह को देखकर मेरा ईमान और मजबूत हो जाए। और जिस भाई ने मुझे बुलाया, मैंने उनसे यह कहा था कि कोई ऐसी जगह
अगर टाइम हो, जरूरी नहीं, मीटिंग्स इनको प्रायोरिटी है, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह हो जो मैं देख पाऊं तो प्लीज। उन्होंने कहा आप फिक्र नहीं करें, जब आप आएंगे तो हम देख लेंगे। और जब मैं वहां पर था तो वो मुझे एक ऐसी जगह पर ले गए वाशिंगटन डीसी में, जिस जगह का नाम ही, बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, कई मंजिला, और उस बिल्डिंग का नाम था बाइबल म्यूजियम। बाइबल म्यूजियम। तो आप अंदाजा कर लें कि उसके कई फ्लोर थे, बहुत बड़ी बिल्डिंग, और हर फ्लोर में इब्तिदा से लेकर चमड़े पर लिखे जाने वाले खुदा के कलाम के बाद तू मार और रख, और फिर लिखी जाने वाली चीजें और मुख्तलिफ जबानों में तर्जमे, ओरिजिनल जो मसवदे थे वो, और इवन आज तक जितना खुदा का कलाम तर्जमा होकर लोगों तक पहुंचा, इवन उर्दू, पर्शियन और अरबिक में भी मैंने वहां पर बाइबल मुकद्दस देखी, और देखकर हैरान हो गया। खुदावन शुक्र हो कि लोग तो हमें कहते हैं कि ये बदल गई और ये हो गया और वो हो गया, लेकिन आपके लोगों ने किस तरह से इस कलाम के इन हिस्सों को संभाल कर रखा हुआ है। लातीनी, इब्रानी, हस्पानवी और कदीम तरीन जबानों में अहदे अतीक और अहदे जदीद की जिल्दें मुझे देखने का इत्तफाक हुआ है। यह सिर्फ एक जगह है, जबकि दूसरे ममालिक में प्रायोरिटी खुदा का कलाम, और उसके बाद कोई ऐसी जगह जिससे मेरे ईमान को और ज्यादा वसत मिले। और मैं कोशिश करता हूं कि यूं खुदा के कलाम के वसीला से मैं और ज्यादा मजबूत हूं। कई पिक्चर्स भी बनाकर, वीडियोस बनाकर, मैंने जो पिक्चर्स ली गई, हर जगह की नहीं ले सकते थे, मैंने फेसबुक पे भी डाली थी ताकि लोग देखकर बरकत पाएं। शायद कुछ दिनों बाद फिर मैं उनको रिपीट कर सकता हूं आपके लिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इन जगहों पर जाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, और उन प्लानिंग्स के तहत देखना पड़ता है कि कहां पर क्या है। और यकीनन मेरा ईमान मजबूत हुआ उन जगहों पर जाने के वसीला से। आप खुद सोचें कि जिन बातों से मुताल्लिक खुदा का कलाम हमें बताता है कि वहां पर क्या होगा, और ईमान के साथ जब हम इन बातों को कबूल करते हैं तो फिर कितनी शादमानी होती है। तो फिर जब हम उस मकाम पर होंगे तो फिर उस शादमानी का बयान मैं लफ्जों में नहीं कर सकता। मैं सोचता हूं मुकद्दस यूहन्ना ने रूहुल कुद्स की तहरीक से जैसे रूह ने रहनुमाई की, उन्होंने बेहतरीन इमेज, बेहतरीन पिक्चर पेश की, लेकिन मैं सोचता हूं इससे भी कहीं ज्यादा पुररौनक, जलाली और खूबसूरत वो मकाम होगा जिसका खुदा ने हमसे वादा किया है। इस शहरे यरूशलेम की तामीर में किस किस्म की, मुझे यही कहना पड़ेगा, दौलत या कीमती तरीन अशिया का इस्तेमाल हुआ है। आप खुद इन आयात को जब आपने सुना है तो अंदाजा कर सकते हैं, और बेहतर होगा कि खुद अपनी आंखों से देखकर भी इन आयात को तलावत किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन जब मैं कुरंथियों का खत की तलावत करता हूं तो मुकद्दस पौलुस ने
करंथस के ईमानदारों को और इवन आज मुझे और आपको भी एक बड़ी खूबसूरत खुशखबरी सुनाई जो हमारे ईमान को और ज्यादा बुलंद करती है और मजबूत करती है। पहला कुरिन्थियों 2 बाब और इसकी 9 आयत। पहला कुरिन्थियों 2 की 9 करंथुस की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का रूहुल कुद्स की तहरीक से पहला खत और इसका 2 बाब और इसकी 9 आयत लिखा है। बल्कि जैसे लिखा है वैसे ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी हैं। जो ना माजी में आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी और ना ही हमारे जहन में ये बातें आई, खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए वो चीजें, वो जगह, वो मकाम तैयार कर रखे हैं। और अजीजों, दौरान स्टडी में यह सोच रहा था कि इस स्टडी को जितने भी आज सुन रहे हैं, फेसबुक पर, हमारी स्काइप आईडी पर, या माबाद मेरे कई फेसबुक पेजेस पर, यूट्यूब चैनल पर, और आप जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इन स्टडीज को सुन रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ मसीही नाम रखने से या मसीही गिराने में पैदा होने से या सिर्फ मेरे गिरजे जाने से, हदिये और चंदे और दायकियां देने से और पादरियों को बिरयानियां खिलाने से, नो एंड नेवर, ना सोचें कि ये मेरी और आपकी निजात का सबब है और हम आसमान पर चले जाएंगे भावें जनियां डुबकियां ले लइए। नो एंड नेवर। यहां पर मैं इस बात का इकरार करता चलूं, बहुत जरूरी है कि ये जिन बातों का मैंने जिक्र किया है, मैं नहीं कहता हूं कि वो बुरी है, नहीं करनी चाहिए, ना 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 ना, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आसमान की बादशाही में, उस नए यरूशलेम में दाखिले के लिए ये चीजें जमानत नहीं है और नहीं है और वाकई नहीं है। आसमान की बादशाही में जाने के लिए कोई मुझसे नहीं पूछेगा, ओ भाई दस किन्ने क्रूसेड करवाए इसनी, गोरे बुला के दसते सही, या किन्ने टीवी स्टेशन खोले सी, या किन्नियां मनादियां कीतियां सन तू। नहीं नहीं, केड़ी मिशन दा है? ऐस मिशन दा है ते आजा। नो 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 नो, पुल होएगी साड़ी। ये एब्सोल्यूट धोखा है। हम अपने आप को अगर यूं समझते हैं कि मैं आसमानी बादशाही में दाखिल होऊंगा, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और जान लीजिए कि अगर आप जो कोई भी सुनने वाले हैं, जो कोई भी आज तक अपने पापों का खुदावंद के हुजूर इकरार नहीं किया, आंसुओं के साथ झुककर, और उन पापों से तौबा नहीं की, और मसीह खुदावंद को अपना दिल नहीं दिया कि वो मेरे दिल में आ जाए, और फिर अपना जीवन खुदावंद यीशु मसीह के लिए गुजार नहीं रहे,
तो हम अंधेरे में हैं। ये वो स्टेप्स और इकदाम हैं खुदा की बादशाही में जाने के लिए। इसलिए मैं फिर से कहूंगा, अपने गुनाहों का खुदावंद के हुजूर इकरार करना नंबर 1, और नंबर 2 अपने गुनाहों से तौबा करना लाजिम है खुदावंद के हुजूर। नंबर 3 सलीब पर किए गए मसीह यस्सू के काम को, सलीब के पैगाम को, मसीह की मौत, तदफीन और जी उठने को, कि वो मेरे लिए कुफारा है, कबूल करना लाजिम है। और नंबर 4 दरे दिल खुदावंद यीशु मसीह के लिए खोलना। खुदावंद आप पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में आ जाएं ताकि मैं आपके लिए जी सकूं। यूं हम खुदावंद के हुजूर आते हैं। इसमें कौन सा रिलीजन है, कौन सी बैकग्राउंड है, कोई मैटर नहीं करती। खुदा की बादशाही में जाने के लिए यही इकदाम है, इसके अलावा कोई और कदम नहीं है। इनको समझने की जरूरत है और माबाद खुदाबंद यीशु मसीह के साथ जिंदगी भर हमारा दिल धड़कने वाला हो। तभी हम खुदा की कुर्बत और खुदाबंद की नजदीकी में होंगे। ये जो आयात मैंने मकाशफा की 18, 21 की 18 और 19 दो आयात को तलावत किया है, शहर पनाह की तामीर से मुताल्लिक है कि यशीब की थी और शहर ऐसे खालिस सोने का था, ऐसा खालिस सोना जो शफाफ शीशा की मानिंद हो। और फिर अगली आयत 19 में शहर पनाह की बुनियादों का जिक्र है और फिर उन कीमती पत्थरों का जिनका मैंने जिक्र किया तलावत के दौरान। मुझे यूं कहना चाहिए कि इसी 21 बाब की 12 आयत में हम ऑलरेडी तलावत कर चुके हैं और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी और उन पर और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इस्राइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। और बहुत खूबसूरती इससे पहले भी बयान की जा चुकी है। शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे थे और उन 12 दरवाजों पर 12 फरिश्ते बैठे हुए थे। उसी शहर पनाह की यहां पर बात हो रही है कि वो कैसी शहर पनाह है। संगे यशीब जिसका जिक्र यहां पर हुआ, जबरजद या इसके लिए इंग्लिश में जैस्पर का नाम भी आया है, इंतहाई कीमती तरीन, और कई लोग कहते हैं ये डायमंड यानी हीरे की एक दूसरी सूरत है, इंतहाई महंगी और कीमती तरीन चीज। लेकिन जब हम इस शहर की बात करते हैं तो लिखा है, ये तो सिर्फ देखिए 18 आयत में उस शहर की शहर पनाह की तामीर, दीवार की तामीर, फसील की तामीर यशीब की थी और शहर खालिस सोने का जो इतना शफाफ था जैसे शीशा हो, आईना नहीं, ग्लास, शीशा जिससे आर पार देखा जा सकता है, मींस क्रिस्टल क्लियर। मैं अपने इन आई ग्लासेस से, ऐनक से देखता हूं उन अल्फाज को जो मैंने लिखे हुए हैं, खुदा के कलाम को पढ़ता हूं और
आपको कैमरे की आंख से देखता हूं, अगरचे आप मेरे सामने नहीं, लेकिन बीच में यह ग्लास है, आईना, और यह क्लियर है कि मैं वाज़े तौर पर देख सकता हूं। यह तो एक हल्की सी मिसाल है। तो आप अंदाजा करें कि वो शहरे नया यरूशलेम जो खालिस सोने का होगा, और सोना भी ऐसा कि जैसा हमने कभी देखा भी नहीं, तजुर्बे में भी नहीं आया, जिससे आर पार देखा जा सकेगा। अब आपको पता चला होगा कि मैं आज जब लाइव फेसबुक पर हूं या यूट्यूब पर हूं, फेसबुक पर नहीं बल्कि कई फेसबुक पेजेस पर, और लाइव यूट्यूब पर भी लोग बाद में देखेंगे, और व्हाट्सएप वाले तो देख नहीं पा रहे, लेकिन जो देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं ना सिर्फ अपनी वेस्टकोट ऐसी पहनी है, बल्कि बैकग्राउंड भी ऐसी है जिससे आज की इस टीचिंग के साथ कुछ मुमासलत है और समझने में हमारी मदद भी हो रही है कि हकीकत क्या है। लेकिन एक बात फिर मैं कहूंगा, यह हल्की सी झलक है, बहुत मामूली। जैसे वो कहते नहीं है, और समुंदर विचों एक गिलास पानी दा भरिए, मिसाल है ना। तो आप अंदाजा करें, एक गिलास समुंदर से निकालना, एक गिलास क्या क्या माना रखता है। और बायन इसी तरह मैं कहूंगा, ये अल्फाज उस वादा किए हुए नए यरूशलेम के बयान करने के लिए गोया ऐसे ही है जैसे समुंदर से एक गिलास पानी का निकाला जाए। और याद रखिए, ये जो धन दौलत का जिक्र है, मसलन सोने का जिक्र है, संगे यशीब का जिक्र है, और फिर 19 आयत में हमने मजीद देखा बुनियादों से मुताल्लिक भी नीलम और शबे चिराग और ज़मुर्द और यशीब, ये जवाहिर हैं। और मजीद आगे ये सब कुछ किस बात की तरफ इशारा करते हैं, ये जरा गौर तलब बात है। खुदा सोने और अपनी कीमती तरीन चीजों के जरिया से हमें इंप्रेस नहीं कर रहा। खुदा को किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं, गुजरे हफ्ते भी मैंने जिक्र किया था, इंसान एक दूसरे को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ओ जी वेखो मैं केडा सुना खुदा दा कलाम सुनाना वा, वेखो मैं केडी सुनी भगती करना, देखे मैं कितने अच्छे गीत गाता हूं, देखे जी मैं टेलीविजन स्टेशन वगैरह 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 वगैरह। और शायद अपने टाइटल्स के जरिया से हम दूसरों को मुतासर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक हकीकत यह है कि मेरे ख्याल में इन चीजों के जरिया किसी को मुतासर करने के बजाय वो काम जो हम खुदावंद के लिए करते हैं उसके जरिया से लोग मुतासर हों, तो यह ज्यादा बेहतर और ज्यादा मुनासिब है। खुदा हमें मुतासर नहीं कर रहा, उसको मुतासर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन उसके मुकाबले में है जिसको वो मुतासर करे, और ना ही ये लालच है। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, और वो ये है कि ये तमाम चीजें, सोना चांदी जेवरात और जो कुछ भी मोती जवाहिर हम देखते रहे और देखते हैं और देखेंगे, ये तमाम के तमाम उस शहर यरूशलेम की बनावट और दीवार और दरवाजों और बुनियादों से मुताल्लिक जब हम देखते हैं, तो इन सब ये सब चीजें खुदा का जलाल,
ظاہر کرتی ہے خدا کی عظمت کو، خدا کی بزرگی کو، کہ وہ کس قدر عظیم خدا ہے، اور یہ خدا کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کس قدر عظیم اور پاک خدا ہے، جس کی حضوری میں پاک لوگ ہی جا سکتے ہیں، لائی پجائی کرنے والے نہیں، جھوٹے تے 2 نمبر سائی نہیں۔ ویسے 2 نمبر چیز کوئی بھی ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ وہ جن کے دل خداوند اپنے خدا کے دل کے ساتھ مل کر دھڑکتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب ہم ان موتیوں کی بات کرتے ہیں نا، ان قیمتی پتھروں کی بات کرتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ عہد عتیق میں، جیسا ہم خروج 28 باب میں 15 سے 21 آیات تک دیکھتے ہیں، کہ جو اس وقت کا امام اعظم ہوتا تھا، جس کو چیف ہائی پریسٹ یا سردار کاہن کہتے تھے، اس کا ایک سینہ بند ہوتا تھا، اور یہ وہ لباس تھا جب پاک ترین مقام میں وہ جاتا تو پہنا کرتا تھا، اور سردار کاہن ہی جا سکتا تھا، عام کاہن نہیں۔ اور اس کے اس سینہ بند پر 12 قیمتی پتھر تھے، اور خدا کی حضوری میں ان 12 قیمتی پتھروں کے ساتھ جانا اس بات کی علامت تھی کہ اے یہوہ پاک خدا، میں اسرائیل کے 12 قبیلوں کے بیہاف پر رکھنا میں کھڑا ہوتا ہوں آپ کی حضوری میں۔ او خداوند، ہمیں رات کے پہروں میں دن کو اپنی قوم اور کلیسا کے لیے رکھنا میں کھڑا ہونے کا فضل عنایت فرمائے۔ بہت ضروری ہے، نریاں باندھاں تے ککڑ بھی دیندا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم واقعی خداوند کے حضور دل سے اس کی تمجید کرنے والے اور خداوند کے نام کو جلال دینے والے ہوں۔ اور اختتام پر اگر پھر بھی یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہ آئیں تو میں عبرانیوں کے نام مصنف نے جو خط لکھا ہے اس کے 11 باب اور اس کی 10 آیت کو آپ کے لیے تلاوت کیے دیتا ہوں۔ 11 کی 10 یہاں لکھا ہے، کیونکہ وہ کون، اجازت دیجئے مہربانی سے میں 9 آیت بھی تلاوت کر لوں تاکہ ہم بہتر طریقہ سے اس کو سمجھ پائیں کہ یہ کس کے بارے میں ذکر ہے۔ 8 سے، ایمان ہی کے سبب سے ابراہم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا۔ ایمان ہی سے اس نے ملک موعود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بود و باش کی کہ گویا غیر ملک ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اس وعدے کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی، کیونکہ غور سے سنیے گا، غور سے، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ ہاللویا۔ اس مقام، اس شہر، اس گھر، پائیدار شہر کا منتظر تھا جس کا بنانے والا کوئی بشر نہیں ہے بلکہ خدا بذات خود ہے۔ عزیزو، اس شہر مقدس میں داخلے کے لیے آئیں اپنے آپ کو مقدس کر لیں، ورنہ ہمارے لیے
इंतहाई पस्ती और इंतहाई शर्मिंदगी का समा होगा। हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और इस कलाम की इन खूबसूरत बातों के लिए जो खुदावंद ने आज मुझसे और आपसे की है, शुक्रगुजारी करें और खुदावंद से दरखास्त करें कि ए खुदा, मुझे ईमान पर कायम रहने का फजल अनायत फरमाए, ताकि मैं आपके जलाल के लिए अपना जीवन गुजार सकूं। मुख्तसर सी दुआ मैं आपके साथ मिलकर करना चाहता हूं। रब्बल अफवाज, शुक्रगुजार हूं इस आपके जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज हमसे हुआ है। शुक्र हो उस पायदार मुकाम के लिए जो आपने अपने प्यारों के लिए अपने बेटे यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। खुदावंद, हम शुक्र करते हैं और ईमान के साथ उस पायदार शहर मुकद्दस में दाखिले के मुंतजर हैं। बस हमें फजल अनायत फरमाइए कि जब तक हम इस फानी जहान में हैं, अपनी पोशाक की हिफाजत करें और आपकी तरफ देखते रहें, क्योंकि खुदावन आपका जलाल हमारी जिंदगी से इस दुनिया में जाहिर होता रहे। जितने भी मेरे अजीज भाई और बहनें इस वक्त स्काइप पर, फेसबुक के मुतअद्दिद पेजेस पर, यूट्यूब और व्हाट्सएप में इस कलाम को सुन रहे थे और इस दुआ में शरीक हैं, उनके लिए आपकी गुनागून बरकत तलब करता हूं। यीशु के नाम से अपने लोगों को बरकत, सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र दराज अनायत फरमाइए। अपने लोगों की टेंशन्स और परेशानियों को आप जानते हैं। खुदावन, अपने कुदरत वाले नाम में उनकी टेंशनों को दूर कीजिए, बीमारों को शिफा अनायत फरमाए और अपने लोगों को अबदी राह पर ले चलिए। आज फिर से हम आपके लोग मिलकर यूक्रेन के तमाम ईमानदारों के लिए, इवन तमाम लोगों के लिए आपकी प्रोटेक्शन और हिफाजत मांगते हैं। जो जख्मी है उनको आप सेहत दीजिए, हड्डियों को जोड़िए और जो बाकी है उनको बर्दाश्त की तौफीक अनायत फरमाइए। जल्द ये जंग मौकूफ हो, हुक्मरान आपस में सुलह करें और मुमकिन कीजिए कि यूक्रेन पहले की तरह आबाद हो और आपका नाम आपके लोगों के वसीला से जलाल पाए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए। मसीह खुदावंद के जलाली, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको ढेरों बरकत अनायत फरमाए। फिर हाजिर होऊंगा जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।